अगर आप एस्पायरिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो ये एपिसोड आपके लिए। आज की हमारी गेस्ट है मेरी डियर फ्रेंड प्राची साथी, जो टीवी एक्ट्रेस, मॉडल, रिनाउंड भरतनाट्यम डांसर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड व्हाट नॉट। आज की कॉन्वर्जेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पे हमें बहुत इंसाइटफुल नॉलेज मिलेगी और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। हाय, I have never come to this place before. please welcome. So glad to be here. Likewise. And I'm so happy to be a part of Be You with Shraddha. I'm honored. We have recently added new collection. I know. So yeah. This space is just transformed, है ना? no? Totally. This is so lovely. Prachi Sathi, welcome to Be You with Shraddha S. I'm so happy, honored and excited. I just can't tell you. I mean, इतनी खुशी हो रही है कि जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, we've been known to each other for a while now and आज बहुत मजा आने वाला है बात करने के लिए। इनफैक्ट मुझे कल ही रियलाइज हुआ एज आई वाज थिंकिंग अबाउट टुडे दैट वी आर मीटिंग और मुझे ये रियलाइज हुआ कि इट्स बीन 10 years. Yes. Yes, so I've Already. known you for 10 good years and it's been so wonderful and I feel like I'm a part of your journey in such a big way. You are. I've just self-proclaimed part of your journey. No, you are truly, you are a part of my entire journey of Masakali, say it Masakali, say it schooling of the kids and Everything, Yes, everything. yes. And I must say at this point, I'm so proud of you because I've seen you from your store in Juhu where we first met, then to your booming online presence, and to now the brand that you've created of yourself. And with this Thank Be you. You with Shraddha, you've just taken up to the next level and it's amazing and it's very, very inspiring. I must also share with all our viewers that every time we go out socially and we are out in public, I feel so happy when people come up to Shraddha and they say, हमने आपको देखा है, हम मसाकली को follow करते हैं. And I'm like, हाँ, ये मेरी friend है. In fact, I share the same feelings because I think everybody's aware कि आप बहुत ही renowned भरतनाट्यम dancer है, voice over artist है, a model, an actress, and whatnot. So I think let's start about your journey. Please tell us कि आपका भरतनाट्यम journey कैसे start हुआ? When you know someone says journey, it really takes you back so many years. Goes to say that also it starts revealing your age, which I'm not very shy about. The funny thing is that kahin pe mentally, I always feel young at heart. I think it's got to do with my child voicing that I do. Yes. वो कभी कभी याद दिलाना पड़ता है. Okay, now you are this age, you know. I think you are the perfect example of Santur mom. अरे अरे and says another Santur mom. But yeah, if you ask about my journey, to really put it in short will be very difficult because it's been so diverse and it's been so exciting. One particular aspect, like I can confidently say, it's been nice to have tried so many things in life. Let's put it in a nutshell. And then maybe as we speak, I will elaborate on more experiences and fun things. But yeah, I started very young when I was almost 11. That's where it all started. And it's been really fun and a huge learning experience. Now tell us about the fun part. Like you are a voiceover artist. I think Peppa Pig, Krishna, and also Small Wonder. मैंने Small Wonder like I remember कि जब बड़े होते वक्त Small Wonder मैं देखकर बड़ी हुई हूँ and जब मुझे पता चला कि it's you have given the voice like the Hindi version of it. I mean, प्लीज एक बार वो आवाज भी बता दीजिए स्मॉल वंडर की एंड टेल अस अबाउट दैट जर्नी लाइक Correct. आपने वो कैसे डिस्कवर किया कि आपके अंदर वो टैलेंट है ऑल्सो उसको आपने कैसे बढ़ावा दिया उसको कैसे एनहांस किया एंड हाउ डिड यू गेट द फर्स्ट ब्रेक लाइक एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट इसके बारे में प्लीज बताओ So previously you asked about dance and then dubbing. So I like to call my life two-dimensional. So there's dance and then there's dubbing that went parallelly and it also kind of started parallelly. So I remember when I was about 11 years old, my sister was in her 10th standard.
एंड हमारा ये रिचुअल हुआ करता था कि जब भी छुट्टियां होंगी गर्मी की तो हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के हम अपने मामा के यहाँ चले जाएंगे, बिकॉज पूरा जो बचपन है हमने वहीं पे गुजारा है, Like everybody does, लाइक I think. एवरीबडी डज. गर्मी की छुट्टियां मामा के घर. Absolutely. So what started happening was this particular holiday my mother decided कि नहीं, इस बार दीदी को पढ़ना है तो कोई भी कहीं नहीं जाएगा, तुम दोनों यहीं बैठोगे, उससे अच्छा मैं तुम दोनों को एक वर्कशॉप में डाल देती हूँ. सो पृथ्वी थिएटर में उसी वक्त ये समर कैंप शुरू हुए थे नए नए. तो हम दोनों अपना डब्बा वब्बा बांध के हम दोनों चले जाते थे, 2 घंटे वहां पे बिता के वापस आके देन दीदी ऑफ कोर्स पढ़ती थी, मैं खेलती थी. बट उस समर वर्कशॉप में मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मेरी जो है पूरी ज़िंदगी सॉर्ट ऑफ बदल जाएगी, एक अलग मोड़ ले लेगी, बिकॉज़ वहाँ से मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला फॉर अ चिल्ड्रंस फ़िल्म. द फ़िल्म इज़ स्टिल पॉपुलर एंड इट इज़ स्टिल अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड इट इज़ क्वाइट अम्यूजिंग टू वॉच इट नाउ बिकॉज़ आई वाज़ ऑल ऑफ 11 years old. It's called Karamati Court, and I know a lot of people in our generation have watched that film because वो स्कूल में हमेशा वो एक फ़िल्म, एक मॉरल वैल्यू जैसे एक फ़िल्म वो दिखाई जाती थी. दिखाई एक जाती बच्चा है. था, वो एक लाल कोट पहनता है, हाथ जेब में हाथ डालता है और एक सिक्का निकलता है. सो वो फ़िल्म थी. और जब मैं उस फ़िल्म की डबिंग के लिए गई, उस वक़्त वहाँ के जो साउंड इंजीनियर थे राकेश रंजन जी, उन्होंने देखा कि यार ये बच्ची जो है वो अच्छा कर रही है. उस ज़माने में ये भी था कि जो डबिंग थी वो एक बहुत ही अलग किस्म की स्किल थी. मैं थोड़ा-सा अपने दर्शकों को एक्सप्लेन करूँगी कि उस वक़्त डबिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 इयर्स अगो, डबिंग किस तरह से हुआ करता था. यू वुड सी द फ़िल्म, द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, और उसी वक़्त जब कैरेक्टर अपना मुँह खोल रहा है, उसी वक़्त आपको वो डायलॉग बोलना है विद द वॉइस दैट इज़ नीडेड एंड विद द एक्सप्रेशन दैट इज़ नीडेड. सो इट यूज्ड टू बी अ स्किल वेयर यू आर वाचिंग वेरी इंटेंटली एंड करेक्टली एट दैट टाइम यू स्पीक. अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो लाइन को स्क्वीज़ कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, शिफ्ट बहुत कुछ किया जा सकता है, पर तब वो सब नहीं नहीं था. था. तो ऐसे करते-करते मेरी डबिंग की शुरुआत हुई. साइमल्टेनियसली आई वाज़ ऑल्सो डांसिंग. डांस मतलब ऐसे था, मैं मानती हूँ कि मेरी माँ जो है इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज़ कभी-कभी होता है ना, जो अपने एस्पिरेशंस होते हैं, जो अपने सपने होते हैं, जो हम पूरे ना कर पाएँ, वो हम अपने बच्चों के थ्रू कराते रहते हैं. ट्रू. तो मेरी माँ के केस में, बिकॉज़ शी इज़ वेरी टैलेंटेड और वो भी बहुत कुछ चीज़ें करती हैं ऑफ अभी. कोर्स आई एम अवेयर. सो उस वक़्त लेकिन ऐसा था कि फैमिली और उस सोसाइटी उस वक़्त इस तरह की थी कि उनको अलाउड नहीं था कुछ चीज़ें हम्म. करने के लिए। तो वो चाहती थी कि नहीं, मैं अपनी बच्चियों से सब कुछ करवाऊँगी। तो डांस, हालाँकि मैं, बहुत ही एक फ़नी इंसिडेंट है, मैं बहुत रोती थी डांस क्लास जाने के लिए। और मुझे अभी भी याद है, इतने सारे एपिसोड्स हैं जहाँ पे मैं, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे डांस अच्छा ही नहीं लगता, और मम्मी बोलती थी अच्छा आज चले जाओ, अच्छा आज चले जाओ। और वो आज करते-करते आज तक वो दिन है, मैं इतना अभी डांस कर रही आई हूँ. नो. In fact, so many times I pick up the phone, I call her and I say, Mom, I just want to say thank you. Because had you given up on me at that time, I would not have been doing, and I would not have been experiencing this joy that I'm experiencing through dance. So, as parents, I feel it's a big reflection for me. You have to gauge that point, ki, which is that point till where you have to push. देयर इज अ ब्रेक पॉइंट. एक होता है कि जैसे मेरी दीदी ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, उनसे भी करा है, उन्होंने जो मेरे साथ किया सारा कुछ मेरी दीदी के साथ भी ट्राई किया, बट इट डिडंट वर्क. राइट. बट विथ मी शी जस्ट न्यू हाउ मच टू पुश. सो दैट वाज डांस. एंड देन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट द वॉइसिंग थिंग, तो एक के बाद एक मैं चीज़ें करती गई. और मुझे याद है, ये अब स्मॉल वंडर मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं कब वो ब्रेक थ्रू हुआ था, बट तब डीडी मेट्रो नया-नया आया था। हमारी लाइफ में एक एक कुछ खुल गया था जिसमें डीडी मेट्रो एक नई चीज़ आई थी, और बहुत सारे फॉरेन के शोज़ जो हिंदी में डब हो रहे थे हमारे लोकल ऑडियंसेस के लिए। और स्मॉल वंडर बहुत ही पॉपुलर था। मुझे ऑफ कोर्स कोई आइडिया नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। मुझे जस्ट सिर्फ़ पता था कि मैं ये चीज़ एन्जॉय करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और स्कूल से डायरेक्टली मम्मी वुड टेक मी टू द स्टूडियो, एंड विकी वाज़ द नेम ऑफ द विक्की. कैरेक्टर. यस. And this is how she would speak. So she's a robot. तो इस तरह से कुछ वो बोलती थी. मेरा नाम है विकी लॉसन. मेरे भाई का नाम है जेमी लॉसन. मैं एक रोबोट हूँ. मुझे अपसाइड केक बनाना आता है. ये रहा अपसाइड डाउन केक. Oh, it's so, I mean, so effortlessly you do this. It's Yeah. so nice. It's like a switch. I switch to characters. I know. And Krishna, please.
सो लिटिल कृष्णा इज अ इसकी भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। ये जो फ़िल्म है, आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज़ ये जो सॉर्ट ऑफ एक वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स जो बने थे जहाँ पे एनिमेशन इंडिया में क्रिएट हुआ था, प्रोड्यूस इंडिया में हुआ था बिकॉज़ तब तक ऐसा था कि बहुत सारा जो काम है वो अब्रॉड से आ रहा है, हम उसको डब कर रहे हैं। ये जो था वो ओरिजिनल एनिमेशन इंडिया में बना था और आप मानोगे नहीं, कम से कम 9 से 10 साल तक ये फ़िल्म बनती रही। जब मैंने ऑडिशन दिया तब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे लगता है जब तक मैंने वो डब किया कुछ और 5-6 साल गुज़र चुके थे। सो इतना प्रोसेस था उस फ़िल्म के पीछे, तो बहुत खुशी होती है कि ऐसा एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बना। और लिटिल कृष्णा एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा है जिसने वो फ़िल्म या वो सीरीज़ ना देखी हो। तो लिटिल कृष्णा कुछ इस तरह से बात करते हैं। मुझे थोड़ा सा माखन दे दे ना मैया, मुझे बहुत भूख लगी है। ये गोपियां देखो ना, कितना सता रही हैं। मैया, मैंने सुना है कि बाबा और आप मुझे बाजार से लेके आए हो। बोलो ना, ये झूठ है ना? This is how little Krishna Oh, so speaks. cute, yeah. Prachi, I mean, आप amazing हो. Arey, please, no, this is just something I feel sometimes you feel you're just blessed to be a source or medium to do something, and maybe the power chooses you to do that. And of course, Peppa Pig, I think all the kids would love to, hear, like, मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका पेप्पा पिग फेवरेट नहीं होगा, इंक्लूडिंग आर किड्स, ऑफ कोर्स, यू नो Now they'll be highly embarrassed if you say that. Oh, you know you like Peppa. Please don't talk about it right now. सो एक बार पर वो पेप्पा एक पिग, एज होता है, तो या एक एंड आई थिंक पेप्पा पिग, कोई ऐसा, ये जो अभी रिसेंट जनरेशन है उसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पेप्पा पिग का फैन नहीं आई होगा. एग्री। इनफैक्ट मैं बहुत सारे स्कूलों में जाती हूँ, मैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस कंडक्ट करती हूँ और मेरा ये बहुत एक क्यूट एक्सपीरियंस है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही आई स्टार्ट टॉकिंग लाइक पेपा नो, दे स्टार्ट डूइंग दिस बिकॉज दे डोंट वांट टू सी मी। उनका ऐसा है कि मुझे इमेजिन करना है कि हाँ, करेक्ट करेक्ट, दिस इज ओनली दिस पेपा's वॉइस, इज, बट बाय सीइंग दिस लेडी आई एम गेटिंग वेरी रैटल्ड और आई नो, डिसोरिएंटेड। यस. सो पेपा जो हिंदी में थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों के लिए ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी क्योंकि आई एम श्योर मैनी आर ऑलरेडी अवेयर और ये बहुत अभी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो नहीं पता, बट फिर भी यूजुअली ऐसे होता है कि ओरिजिनल एनिमेशन क्रिएट होता है जो यूके या जैसे अब्रॉड होता है और इंडिया के लिए वी डब इट। सो आई एम द वॉइस ऑफ पेपा इन इंडिया। सो देर विल बी एन ओरिजिनल एनिमेशन एन ओरिजिनल वॉइस विच इज इन इंग्लिश, कोई जापान में होगा, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में, बट इंडिया में जो पेपा की वॉइस है वो उसको मैं डब करती हूँ। सो दिस इज हाउ पेपा स्पीक्स। हाय, मैं हूँ पेपा। ये है मेरा भाई जॉर्ज, ये है मामा पिग और ये है डैडी पिग। और मुझे मिट्टी के गड्ढों में खेलना बहुत पसंद है। So this is Oh. Peppa. So the placement of the voice goes to the back of the throat. So उसमें भी काफ़ी टेक्निक्स होते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन में। एक एज के लिए हम कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, एक कैरेक्टर के लिए क्या मॉड्यूलेशन होता है, तो इसका काफ़ी स्टडी है। बचपन में तो ऐसे ही कर लिया बिना जाने कि क्या टेक्निक है, बोलते हैं जैसे एक अपने आप। But धीरे धीरे you are analyzing what you are doing to be able to train. So I also teach a lot of children. So उसमें काम आता है because बच्चे भी फिर कर पाते हैं अच्छे से। प्राची, जैसे कि आपने मॉडलिंग किया है, हम्म बहुत सारी एड फिल्म्स की है. आई रिमेम्बर जगजीत सिंह जी का वो जो एल्बम है, प्यार का प्यार पहला का पहला खत, खत ओ लिखने गॉड, में. या। सो दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स जब मैं बड़ी हो रही थी. हाँ। एंड अभी जब पता चला कि अरे शी इज माय फ्रेंड, इट फील्स सो नाइस. सो मुझे बताओ कि आपकी लाइक एड फिल्म्स करते हो, एक्टिंग करते हो, भरतनाट्यम, वॉइस ओवर, आपका सबसे फेवरेट क्या है? लाइक इसमें से सबसे ज्यादा आप एंजॉय किस चीज को करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करती है। एंड इट एज क्लीशेड एज इट मे साउंड, बच्चे आप माँ को कैसे पूछ सकते हो कौन सा बच्चा प्यारा है, इट्स एक्चुअली लाइक दैट। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि ओके आप मॉडलिंग कर लो, आई एम रेडी। अगर अपॉर्चुनिटी आती है आप कहीं पर परफॉर्म करो, आई एम रेडी। वॉइसिंग करो, आई एम रेडी। आई एम जस्ट हैप्पी बिकॉज आई फील एज एन आर्टिस्ट
if you get to express yourself, Hmm. you In are happy. whichever way. It gives you joy. So this is an artistic expression of you as a person, as a personality. And also I would say, I won't say everything is gifted. It would be very wrong to call each and every artist, oh he's so gifted. There is a lot of work. इतनी मेहनत है उसमें, इतना रियाज है, और इतना सारा उसमें वक्त जाता है। तो जब हम कहते हैं किसी भरतनाट्यम डांसर को कि आप आइए पर आप 5 मिनट से ज़्यादा परफॉर्म मत कीजिए, हमें ये सोचना चाहिए कि उस 5 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए पहले तो उसने 20 साल की अपना का अभ्यास किया है, उसमें 2 घंटे तो सिर्फ मेकअप और कॉस्ट्यूम में गए हैं, Right, right. और फिर आता है 5 मिनट का प्रेजेंटेशन। बट उस प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट अगर कर जाए इवन 5 लोगों को, तो हमारा काम सफल हो गया। इट्स लाइक दैट, एंड आई थिंक ओनली इफ यू वर्क विद दैट एटीट्यूड, दैट अप्रोच, यू कैन सस्टेन एज एन आर्टिस्ट, because economics are very questionable in the artistic You're field, and right. it's a well known fact that artists are highly underpaid Yeah. uh, for their effort, for their talent, whatever. But things are changing slowly, things are changing. Social media has played a huge role. As much as people may talk about social media being bad or negative, I think the negative is for the children at the foundation age. But as adults, if you are not riding the wave of social media, then you are doing a disservice to your art and talent. आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे बहुत सारी जो इंडियन फोक डांसेस का फॉर्म्स है कंपेयर टू वेस्टर्न डांस फॉर्म्स, इनको बहुत कम रिकग्नाइजेशन मिली है व्हेन वी कंपेयर। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि ऐसा क्यों है? या जैसे आपने बोला कि अंडरपेड है, लाइक इसके पीछे क्या कारण है? क्यों उतनी रिकग्नाइजेशन नहीं है जितनी वेस्टर्न डांस फॉर्म्स को है? और इंडियन मतलब क्या रीजन हो तो सकता है? इसका ना मेरे पास एक बहुत सिंपल एनालॉजी है, और वो वर्क करता है मेरे हिसाब से। ये मेरी कुछ अपनी ही अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी चीज जो बहुत एक्सक्विजिट हो, जस्ट टेक फॉर इंस्टेंस योर हैंडलूम। देयर इज हैंडलूम एंड देयर इज पावरलूम। पावर। Once you've touched and felt and experienced it, will you like powerloom? But उस तक पहुंचने के लिए एक थोड़ा सा वक्त उसके साथ बिताना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है। सेम थिंग सुशी या सरसों का साग आप ले लो। पहली बार जो भी कोई खाएगा वो सोचेगा इतना क्या लोग इसके बारे में, ये तो मतलब ठीक है, बर्गर अच्छा है। बट एक बार आप उसको खाते रहो, आपका टेस्ट अक्वायर हुआ है। सो आई कंपेयर classical arts or any such beautiful art forms which have survived the test of time. They've been here for centuries. Similarly, handloom has been here for centuries. But उसको जौहरी ही जानता है, वो उसकी क्या परख, डायमंड की। तो हीरे की परख जौहरी ही जानता है। तो इसमें वही है, क्लासिकल और फोक आर्ट फॉर्म्स में इतना सारा कुछ है, उसमें इतना कुछ है उसका रस लेने के लिए, लेकिन उस तय तक जाने के लिए आपके साथ उसके साथ थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। और आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ऐसा कोई नहीं है जिसको कुमार गंधर्व जी की आवाज पसंद नहीं आएगी अगर आप उनको सुनते रहो। पहली बार सुनोगे गा रहे कोई, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट उसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। जस्ट छोड़ दो अपने आप को और फिर वो अपने आप अंदर चला जाएगा। सो पॉपुलैरिटी विल ऑलवेज, पॉपुलर म्यूजिक, पॉपुलर आर्ट, सस्ती चीजें और जो भी, आई एम नॉट कॉलिंग पॉपुलर आर्ट सस्ता, नो, उसमें भी मेहनत है, उसमें अलग कुछ है। बट ये जो पूरा जिसमें एक बहुत जो ग्रेविटी है, जो वेट है, उसको आजमाने के लिए थोड़ा सा वक्त बिताना जरूरी है। जैसे कि भरतनाट्यम हम्म। आपने लंदन में परफॉर्म किया, उसके बारे में प्लीज बताइए। Oh my God, that was such a memorable experience, Shraddha. You know, actually it's very funny talking to you because Shraddha सब जानती है और हम यहाँ बैठ के ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि हम एक दूसरे को जान रहे हैं। जान रहे बट हैं। हमारा दिन में 3 बार तो बात हो जाती है उसको। आई नो, बट जिस ढंग से यहाँ पे बात हो रही है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओके, सो लंदन, आई रिमेम्बर शेयरिंग दिस विथ यू ऑल्सो, जब कॉल आई थी। ये पंडित रविशंकर जी का इकलौता ओपेरा है जो उन्होंने कंपोज किया था, और उनकी
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिखाया गया था लंदन में। एंड उसका एक्सपीरियंस ये था कि गौरी दिवाकर जी जो बहुत ही रिनाउंड कथक की नृत्यांगना है, उन्होंने अप्रोच किया और कहा कि ऐसा ऐसा एक शो हो रहा है लंदन में, उसके लिए हमें जाना है, उसके लिए रिहर्सल्स हैं। तो मैं दिल्ली गई, मैंने उसको काफ़ी चीज़ों को कोरियोग्राफ किया, फिर हमने एक साथ उसमें प्रैक्टिस की। एंड आई रिमेंबर दिस वाज रॉयल फेस्टिवल हॉल इन लंदन, 3000 सीटर। अनुष्का शंकर was sitting right in front with her mother, और उनका एक छोटा पेट भी है। वो हर शो में अपने पेट को लेके आती हैं। तो उनका जो फर्स्ट रो है वो फिक्स्ड होता है, उसमें वो बैठती हैं, अनुष्का बैठती है, और बीच में एक सीट होती है जिसमें उनका वो पपी बैठता है। एंड ही हैज़ वॉच्ड, ही इट इज़ हर्ड कि वो खुद पंडित जी को बजाते हुए, सितार बजाते हुए सुनते थे। एंड ही इज़ अ वेरी, बोलते हैं ना जैसे ओल्ड सोल। So that was a very, very unique experience. So what motivates you? Like, what is that I've seen you, मतलब मैंने देखा है कि प्राची is always like this, कि नहीं ये करना है, उसके बाद ये करना है। कभी ऐसा laid back attitude मैंने तुम्हारा देखा नहीं है। You're very particular, you're like, ऐसे सब चीज़ें परफेक्ट चाहिए, या ऑर्गेनाइज चाहिए, ये सब बातें। तो क्या चीज़ है जो तुम्हें मोटिवेटेड रखती है, या क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना पर्टिकुलरली सारे चीज़ों में आपको एक परफेक्शन चाहिए होता है? सो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है, और कैसे आपको मोटिवेट करती है ये चीज़ें? I think it's a big problem sometimes. वो Because मुझे और I आपके am पति को पता है, लेकिन हम अभी दूसरे बारे में बात करेंगे। it's because I'm also surrounded with people who are not like that. But you know, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि if I was married to someone who was like me, it would have been a disaster. Imagine हम दोनों ऐसे particular हैं. So the sweet thing is that वो जो भी मैं बताती हूँ वो मान लेते हैं। अगर मैं कहूँगी नहीं नहीं अभी ना अभी से हम इसको ऐसे रखेंगे, अच्छा भाई आपको जैसे रखना है रखो। So I think it's just by nature that I like to do things. So if a thought comes in my mind कि ऐसे करना है, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करती कि हाँ करना है, करना है, करना है, करना तो है। इसको कर दो। रिजल्ट का मैं बहुत नहीं सोचती। ये होता है ना कभी-कभी हम ओवरथिंक कर जाते हैं चीज़ों के बारे में कि नहीं मैं पहले इसको अच्छे से प्लान करूँगी, अच्छे से प्लान। ऑफ कोर्स मेरी प्लानिंग में कोई कसर मैं नहीं छोड़ती हूँ। आई लाइक टू लाइक यू सेड आई एम वेरी ऑर्गनाइज्ड एंड ऑल ऑफ दैट। But at times I feel you have to just jump into a situation and then let it take its own course. So उस मामले में ऐसा है तो what motivates me, I think it's just my nature. ऐसे कोई खास मेरा कुछ गोल और एम्बिशन नहीं है लाइफ में। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो श्रद्धा, आई एम द लीस्ट एम्बिशियस पर्सन। मेरा लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ना लाइफ में ये बनना है या मुझे वो करना है। मैं ना अभी का सोचती हूँ मुझे कल ये करना है। तो माई लाइफ रन्स थैंक्स टू माई टू डू लिस्ट। और अगर वो लिस्ट आपको वो कभी खाली मिलेगी नहीं, मतलब उसमें एक सिली सी चीज़ भी हो सकती है जैसे गार्बेज बैग्स खरीदने हैं, ये भी होगा। दैट विल ऑल्सो फीचर एंड देयर विल बी सम लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑल्सो कि हाँ मुझे अभी आई वॉन्ट टू डू दिस। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पर्पस, and thankfully life has turned out in a way that there have been enough purposes for me to wake up every morning with a lot of excitement and a lot of gratefulness. Gratitude is very important, that things have turned out in a way that you're being able to do so many things. So yeah, I don't know if that answers your question, but I've managed to take you somewhere. या सो अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताइए। Mhm. आई थिंक मोर और लेस हमने साथ में ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है। आप हमारी बहुत मार्गदर्शक रही हैं ज़िंदगी में। आई एम गोइंग टू शेयर दैट एपिसोड ऑफ हाउ आई वाज़ स्टॉकिंग यू एवरीवेयर, या बट आफ्टर यू आस्क्ड मी द या क्वेश्चन। सो टेल अस अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, और कैसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट हुआ है, और आपकी पर्सनल राय क्या है उस बारे में, और आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल जर्नी? हालाँकि दिस इज़ अ टॉपिक आई सॉर्ट ऑफ ऑलवेज़ स्टीयर अवे फ्रॉम। मैं ज़्यादा इसके बारे में शेयर नहीं करती हूँ पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे,
it's just a personal choice. But now that you've asked, I would like to share a few things. I remember spiritual journey, if I have to say, I connected to my connection with Isha and Sadhguru. Because तब तक ये था कि dance is spiritual, dance is spirituality, which it is. And I still believe that classical art forms are spiritual in nature, because there is a certain, in fact, even Sadhguru says that, because there is a certain connect you find through these classical art forms. It is a kind of yoga, योग जिसे बोलते हैं. अब होता ये है, और हुआ ये था हमारी लाइफ में, कि 2011 में सदगुरु का एक प्रोग्राम होने वाला था. एंड एट दैट पॉइंट राजेश वाज वेरी हेवी इन हिज वर्क, एंड ही इज अ डायरेक्टर, ही इज एन एडवर्टाइजिंग फिल्म डायरेक्टर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन दैट फील्ड. एंड आई सेड, व्हाट, मुझे तो इस सब की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपना डांस करती हूँ, डांस इज ऑलरेडी स्पिरिचुअल इन नेचर, इट इज़ अ काइंड ऑफ योगा, बट यू नीड इट. और हमेशा काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार हमें ज़रूरत नहीं है, पर उनको ज़रूरत है. Yeah, उंगली yeah. हमेशा वहाँ पॉइंट होती है. But nicely, exactly like I said, he listens to whatever I say. He went and he did the course. And when he came back, immediately he has booked me for the next course that was happening in an engineering program, it's called, which was happening in Bangalore. And I said, no, 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 I don't need it. I don't need it. But this was again 10, 12 years ago. And now when I look back, I can see how much it has enhanced our life, what joy it has brought, what perspective it has brought to us. And I think this is something that each one has to experience. And I'm not saying just this. जो आपकी कॉलिंग हो, जो आपको लगे कि, बट एक योग के साथ एक जिंदगी गुजारना और उसके बिना, उसमें बहुत फर्क है. एंड आई थिंक अगेन इट इज जस्ट, anyone who has tasted it will only know the value of what it holds and what it does to your life. Yeah, it's very personal It's very experience. personal. And like we know what it is when you are sitting in dhyan. At one point when you're just single pointedly focused on something, but dance is something that does, because dance में आप क्या करते हो, पहले तो एक फिजिकली आप पूरी बॉडी को मूव करते हो, आप म्यूजिक पर आपका ध्यान है कि म्यूजिक क्या चल रहा है, उस म्यूजिक पे आपको मूवमेंट क्या करना है, एक्सप्रेशन क्या देना है, इमोशन क्या करना है. उसी वक्त एज एन आर्टिस्ट यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि लाइट वहाँ पे है, अब मुझे वो मार्क लेना है. All these things. Do you think there is scope to think of anything else? There is no scope. So that becomes You're a so sort of, involved. it is meditative. So I feel I have the best of both worlds, thanks to having my art form and having Shambhavi. So, आपने जब भी ये योगा प्रैक्टिसेस स्टार्ट किया, आपको क्या डिफरेंस लगता है तब तब की आपकी डांस प्रैक्टिस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो और पहले वाला, लाइक वुड यू बी एबल टू टॉक अबाउट इट? So Shraddha, it's very difficult to give you कि ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ. टैंजिबल ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन इनटैंजिबल इतना कुछ है जिसको आप शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. जैसे कितनी सारी बातें हैं जो हमें रियलाइज ही नहीं हुई जब तक हम इस जर्नी पर नहीं चल पड़े. तो एक जैसे फूल होता है ना, वो खिलता जाता है, खिलता जाता है, एक उस तरह का एक एक्सपीरियंस है विद स्पिरिचुअलिटी, कि जब आप उस रास्ते में या उस दरवाजे से एंटर करते हो ना, उसके बाद ही वो चीज़ें, और हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है. हम दोनों इतना वक्त गुजारते हैं साथ में, लेकिन जो मेरे टेक अवेज हैं और जो आपके टेक अवेज हैं वो बहुत अलग होंगे. लेकिन ये बात पक्की है कि देर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स. माई डांस हैज चेंज्ड सिंस द टाइम दिस एस्पेक्ट हैज एंटर्ड माई लाइफ. तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है. और हर चीज़, मैं नहीं कहती हूँ कि सिर्फ डांस से रिलेटेड है, आप जिंदगी में जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें अगर आपको शिफ्ट नहीं नजर आया, तो बहुत ही, मतलब आई वुड से इट्स गारंटीड. लेट्स पुट इट लाइक दैट. जैसे कि आपने हमें ऑलरेडी बताया कि यू आर नॉट वेरी एम्बिशियस, और बट स्टिल कुछ कुछ होंगे आपके एस्पिरेशंस की, यू नो, इन डांस फील्ड हो या आपका मॉडलिंग या एक्टिंग हो या आपका वॉइस ओवर हो, एक कुछ आपने सोचा होगा कि आई वांट टू डू दिस, मुझे यहाँ परफॉर्म करना है या मुझे इसके लिए वॉइस ओवर करना है, कुछ ऐसा आपका एस्पिरेशंस है? इज देयर एनीथिंग दैट in future you would like to do?
So I wouldn't say aspirations, but I have these plans. As you know, there is a project that I have created. It's called When Walls Dance. इतना खूबसूरत, जैसे कि मैंने बोला आपको मराठी में, प्राची तो कितनी होशियार है। राइट Yes, फ्रॉम लाइक this was स्क्रैच। Shraddha's reaction after watching the performance. प्राची तू कितनी होशियार है ऐसा. Because like from scratch to, the climax, what it was, I mean, it's Yeah. so beautifully So done, executed, written, performed, everything. I mean, it's just amazing. yeah, but only now we know what you're talking about. Let least Yeah, explain what we are please talking. talk about it, please. So this is a production. It's called When Walls Dance, and this is where I have brought Varli art, Bharatanatyam, and animation together, and packaged it to tell a story of this little girl Champa who lives in the Varli village and her tree, which is also a Champa tree. So this is the whole production, and this idea, of course, the birth of the idea, and I spent 4 to 5 years researching and creating this project. So, like I said earlier, nothing happens easily and there is a lot of effort that goes into it. But to answer your question, so now I have plans to take this to places. I want it to be taken to. So, the good news, which I haven't told you, which I'll tell you on the show right now, that this project has now been taken up by somebody to take it to the village from where it was born. Oh, how So we nice. are taking it to Boisar, Palghar, that area where the Varli tribes are living. So we are inviting all of them to watch this show, and they are going to see their art in a very different form. Kitty Chan. Yes, so that is the good news. So these are my dreams, or these are my plans to take this project. And then when it comes to voicing, I take it more as a challenge as it comes. So just day before I audition for a Disney show, we are not allowed to reveal anything about the show, but the character was this very cute kid voice, and it sings. Now singing is something I have never done. I have done briefly once, but काम चलाओ जैसे okay इतना that you have to hit that note, because I'm not a trained singer, but it was a challenge. In 30 years I still come across challenges, and that's what keeps you going. If you the day I start believing that, you know what, I know it all, I've done it for so long, just another day for me. No, I go with that same excitement. I had butterflies in my stomach even while auditioning. Okay, I should be able to crack this. Ab wo ho na ho, that's another story. But this part I should do properly, or this I should give my 100% to, is what keeps me going. So these are the kind of experiences I have over the years, in spite of having done so much for all these years. जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस जो होम ईशा होम स्कूल का है, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, एक पढ़कर ऑलरेडी बाहर आ चुका है। तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि आपके दोनों बच्चे ईशा होम स्कूल कैसे पहुँचे हैं? I know why you're asking this, because she plays a very important role in this journey. So I remember our kids were studying in Jamnabai. I think Sam was still in school or Shuja was still in school. I don't remember. और मैं श्रद्धा को देखती थी गेट के बाहर, जैसे होता है ना, एक वो पूरा एक माओ का एक ग्रुप खड़ा रहता है कि अभी गेट खुलेगा और हमारे बच्चे बच्चे आ जाएंगे। धीरे धीरे बाहर आएंगे. और मैं हमेशा नोटिस करती थी कि यू यूज टू वेयर द देवी पेंडेंट. तो अच्छा ये तो लग रहा है ये ईशा से कनेक्टेड है. तो ऐसी बातें शुरू हुई, और जिस दिन यू मेंशन टू मी यस माय ओल्डर सन इज इन ईशा होम स्कूल, तब से मैं चिपक गई श्रद्धा को ऐसे मैग्नेट की तरह. फिर जहां भी मुझे श्रद्धा मिलेगी मैं पूछूंगी, अच्छा टेल मी मोर. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है श्रद्धा सोचती होगी कि यार हर बार मुझे ये वही सवाल पूछ रही है. बट एट दैट पॉइंट यू आर सो अनश्योर अबाउट दैट डिसीजन, बिकॉज इट्स अ huge decision. Sending your children away to study is a very big decision, and I think I must thank you today on this public platform that the way you handheld me, never did you once get annoyed that, I'm asking the same questions. Never did you discard or dismiss anything. You very patiently answered. Once I remember catching you outside one shop in Irla, Shraddha, because that was the time we were close to sending the form. Once again, can you please share your experience, how it is? And I always had one or two extra questions, and very sweetly you would answer. And I think that gave me a lot of confidence as a mother, that if another mother is sharing this and feeling so confident about a decision, maybe it's the right thing to do.
And it's 10 years since then. I must say that both Rajesh and I discuss it is one of the best decisions of our life. And at this point, I also want to share, like I said earlier, I'm not a very ambitious person that I had life plans, because now the way people look at me, they say, you're doing so many things, and then, still you're managing your children and doing this. Actually, it happened the other way. For me, life was all about family, children. That's it. It got over. 3 बजे मेरा दिन ही खत्म हो जाता था, because that's when Kids they would would come come back home. from school. But after both of them left, they are calling it that empty nest syndrome, which many mothers face at a much later age, which is when kids are 18, 19. That happened to us when they were 9, 10. But when I think about it, what it gave us is a very peak time in our lives as mothers and as women who could do something with that time that we got. So for me, what happened was, the minute both Arth and Pari went to school, I was sitting one day, okay, I need to do something now. That now opened up only after they were gone to school. And what ultimately turned out, and this is something I highly advise women who are enterprising and who try to juggle a lot, who are always going through this eternal guilt of, I'm a working person also and I'm not giving time to my children. I think this gave me a very fine balance, because what started happening was, they were there 4 months. I got those 4 months undivided attention, which I could pour into my dance or my voicing or whatever that I wanted to do. And then when they came for holidays, whatever and however big the opportunity, I said no. And as a family, so even Rajesh, if he would get a big project or whatever, he would manage in a way that, we give that time to the children. That if you compromise, then it's disaster. So when they're coming back home, if you're now fully engrossed in your work, saying, no, but now I've taken up this and I have to do this, and sorry, we can't go on this holiday, then it's bad management of that time. So it's so crucial to set certain things so correctly, and it's all how you create the foundation. So once the foundation is set, then that's so that there has not been a single holiday that we've not spent together. Every single day we are there, and we go out, we do the things, and all the things that I miss out on when they are not here, we do in the holidays. It's been such a beautiful journey. Yeah. जैसे कि बहुत सारी जो अभी मदर्स हैं उनकी एक राय है कि सेंडिंग अवे किड्स इज़ नॉट अ गुड आइडिया और एक माँ ही अपने बच्चे को सबसे बेहतर समझ सकती है। अगर आपने बर्थ दिया है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दीज़ काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने फेस करे, आई एम श्योर आपने भी फेस किए होंगे, या इस तरह की काफ़ी बातें, बहुत शार्प बातें आती थी कि ओह! आप यू हैव अ बिग हार्ट, मैं तो अपने बच्चे के बगैर एक रात भी नहीं रह सकती हूँ। आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, कैसी माँ है? लाइक ऑल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। सो आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगी? सो बहुत सालों पहले की बात है। आई थिंक दिस इज जस्ट व्हेन अर्थ हैड जस्ट अबाउट एंटर्ड, और मुझे एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ था मेरा सदगुरु के साथ। और वो कुछ प्रोग्राम में थे, और ऐसा ही मौका मुझे मिल गया दैट, और मैंने उनसे ऐसे ही कह दिया कि माय सन इज इन निशा होम स्कूल, एंड आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट इट। एंड ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटिफुली। ही सेड, व्हेन किड्स सर्वाइव विदाउट देयर पेरेंट्स, व्हिच मींस इट्स गुड अपब्रिंगिंग। तो कभी कभी ये जो हम एज, especially our generation of parents, are doing many things wrong. This overprotectiveness, over monitoring, over involved. Our parents didn't even know what subjects at times. My mother might say, hey, मी तुला हिंदी मराठी नीट शिकवायचंय." But many things we Many were things, doing, yeah. they were not even aware of. And it was okay. We were making mistakes. We were learning from our mistakes. And I think that's why we turned out in a way quite okay. But with the next generation, a lot of things, we are getting involved in their simple eraser and pencil fights, Yeah, yeah. And which also is the not needed. projects from school, like kids are not doing, but mothers are doing it. They're getting it done from somebody, like they're paying it and getting it done. So right now, as we speak, my daughter is giving her 10th and my son is giving his 12th, and I have no clue what they're doing. So everyone's like, your kids are in 10th and 12th. Yes. What can I do about it? They're giving their exams, they're studying, they're doing what they have to do.
अब उसका रिजल्ट क्या है वो पता चलेगा 10-15 साल बाद, राइट। बट हम उसका कुछ कर नहीं सकते. तो टू आंसर दैट, आई थिंक by sending children away, we are empowering them, we are making them ready for the onslaught of life a little early on, but I think that's needed. And if I have to really sell homeschool to somebody, Isha homeschool, I will only say one thing: they are without their mobile phones when they are in school. Period. I think And that's the most on important that thing. note, only aadhe parents, bus, we want to send our kids to homeschool. Fresh air to breathe, Yes. which we are not, we can't do anything about it that. in this kind of a We city. can't do anything about the mobile phone also. Also, We food. all know it's bad, but are you able to take it away? Are you able to stop? How do you stop it? Say So, it fresh air, say it fresh organic food. food, yes. Yeah, keeping them away from unnecessary, unwanted exposure to these phones and social media. I think even that is done. बहुत मतलब गंगा नहा लिया, I know. you know. Bas, rest all things will happen. सो प्राची, हमें आपके फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में बताइए. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जस्ट टेल अस अबाउट इट, लाइक. So, my first stage experience, I'm very proud to say, I premiered on Prithvi Theatre. Okay, it is a very prestigious stage और कहते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा रोल जो था वो एक चूहे का था. इट वॉज पार्ट ऑफ द समर कैंप, और पूरा जो हमारा एक ensemble था बच्चों का, उसमें मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार मिला आज से मिला था. आपका नाम प्राचू. Okay, we always crack such bad jokes. Please don't feel compelled to laugh. But we enjoy this humor. But yes, so Prachu had a very interesting dialogue which was choo choo choo. That's it? Really? The only dialogue I had in the entire play was choo 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 choo. I think right now, if my mother is watching, she'll be falling down laughing because she came to watch the play and like, masta tu fakta choo 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 evdas kela. And we had to do this. We had to hold this hand here and then run around. Of course, we were painted. Our faces were painted with the nose and the whiskers and all of that. But again, tabhi no mobile phones, no social media, no camera, so there is no memory. But what is interesting is everything is etched somewhere in our memory. अब के ज़माने में ऐसे है, हम किसी भी मोमेंट के हज़ारों फ़ोटोज़ लेंगे, देखेंगे एक भी नहीं. जब याद करना हो तो भी हमें मुश्किल से याद आएगा, अच्छा देखते हैं उस दिन क्या हुआ था, अच्छा ये हुआ था. वी आर फॉरगेटिंग सो मच, वी आर कैप्चरिंग सो मच एंड वी आर फॉरगेटिंग अ लॉट मोर. तभी था वी वर कैप्चरिंग लिमिटेड बट रिमेम्बरिंग सो मच. ओह माय गॉड, आई एम इम्प्रेस्ड विद माय ओन वर्ड्स ऑफ विजडम. Yeah, no, no. नहीं, whatever है you ना? said ना, जो अभी आपके मुंह से आया है वो बहुत सही बोला है. इतनी फोटोज है हमारी कैमरा में, अपने फोन में, but I don't remember going back and seeing We them. just don't, but we are constantly paying more and more money to so that it doesn't get deleted, so that we save it. But we don't even go and look at those photos. Rarely कभी कुछ topic निकला तो you'll go and refer to it. But उस जमाने में होता था वो 30 फोटोज का एक रोल होता था. आई स्टिल रिमेंबर वी हैड दिस गर्ल्स ट्रिप, वो स्काउट एंड गाइड ट्रिप होती थी स्कूल की, उसमें मैं कैमरा लेके गई थी. हम सोचते थे ना उस वक्त के, एक काम करेंगे, इसकी फोटो नहीं लेते, हम वहां जाएंगे उसकी लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी 4 ही फोटो बचे हैं, अभी मेरे पास 6 ही फोटो बचे. हम सोच सोच के ऐसे फोटोज लेते थे बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड रोल्स या फोटोज होते थे. बट दोज फोटोज आर इन एल्बम्स विच आर लाइंग इन सम कॉर्नर, एंड देन व्हेन फैमिली कम्स टुगेदर यू लुक एट दोज फोटोज, यू टॉक अबाउट इट. नाउ दैट आई फील इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. सो काफ़ी सालों तक मैंने ऐसे किया था कि जो भी हमारी छुट्टियां थी उसमें हम आइडेंटिफाई करते थे कुछ फोटोज, उनको मैं प्रिंट करती थी, और जो ट्रिप के छोटे छोटे सुविनियर्स होते हैं, टिकट है कोई बस का या कोई शो अगर देखा है उसका एक कुछ मेमोरी, या कभी चीज़ें हम कुछ एक छोटी सी खरीद लेते हैं या कहीं कुछ पड़ा मिल जाता है. तो ऐसे मैं एक पूरे हॉलिडे का एक स्क्रैप बुक मैंने बना के रखे हैं बहुत सारे. तो जब भी मौका मिलता है, जब बच्चे आते हैं, तो हम कोई भी एक उठा के हम शुरू करते हैं देखना, और साइड बाय साइड कुछ एक लॉक किया हुआ. और आप मानोगे नहीं, इतना मज़ा आता है बिकॉज़ कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं उस वक़्त जो हम कंप्लीटली भूल चुके होते हैं.
But when you read it, you're like, oh my God, do you remember this happened? Oh my God, how much we laughed, and all of that starts happening. So I would also encourage, if anyone's inspired by this idea, कि अगर आप छुट्टी पर जाओ तो एक छोटा सा, इसमें थोड़ा सा एफर्ट है, बट अगर आप ये करोगे, आई थिंक एक लाइफ टाइम मेमोरी आपकी एक बन Memory. जाती है, Yeah. rather than just randomly clicking photos on your phone which you're never going to, और अगर फोन कभी गॉड फॉरबिड खो गया तो वो सब भी चला जाए. So ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, but yeah, so my first stage performance was where I played a चूहा, and since then it's been fun. But about the voicing thing, I'd like to add, it's very funny because I started when I was 11. So I started as a child voice. And it's quite interesting that even after these 30, 40 years, whatever that is not 40, yeah, that makes me very old. About 30 years that I've spent, I have not grown from my child voice. So people still call me child specialist. मज़े की एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ. मैं स्टूडियो में गई थी, मुझे बुलाया गया था, एक एड थी शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली. सो आई वॉज वेटिंग इन द वेटिंग रूम, और फिर आए कोई डायरेक्टर या जो भी थे कि यस सो हु इज डबिंग. आई सेड यस वी आई हैव कम. No, but where is the child? I am the child. So he was not very amused by it कि यार किसको बुला लिया है, ये इतनी बड़ी लेडी आई है कोई और चाइल्ड वॉइस बोल रहे हैं. ओके ओके कम कम करके देन आई वेंट. अब स्टूडियो का सेटअप कैसे होता है कि एक रिकॉर्डिंग रूम होता है, एक बीच में एक कांच ऐसे होता है, एंड देन देयर इज अ माइक, एंड देन यू आर इन दिस रूम. अब वो वहाँ बैठे हैं कुछ करें, ही इज नॉट एबल टू सी मी क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसे है कि मैं थोड़ा सा एक वॉल की तरफ हूँ. अब हो गई वो जो भी दिखाया उन्होंने, एंड देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग जो भी डायलॉग था कि आई डोंट रिमेम्बर द डायलॉग, बट मान लो कोई भी डायलॉग था जैसे कि हाँ मैं जाऊंगा, हाँ एक और मिलेगा, एक और मिलेगा. द मिनट आई स्पोक he's speaking from the glass to make sure it's the same Same person who just person. walked in. So it's quite amusing because they don't expect a grown up person to have a child voice. But the hindsight is that all through my modeling career, I played a mother and I have never been able to dub for myself. So Oh. they'll say, sorry ma'am, लेकिन ना क्या है कि आपकी voice ना आपको suit नहीं कर रही है. So there would be other people who would come and dub for me. And if Oh. there was a child in it, I would dub for the child. So such funny stories have happened. And I remember बहुत साल पहले ऐसे भी हुआ था, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, हम फोन पे टिकट्स बुक करते थे मूवीज के लिए. सो देयर वाज नो बुक माई शो एंड ऑल दीज एप्लीकेशंस. तो फोन पे यू वुड कॉल अ नंबर एंड यू वुड से कि मुझे 2 टिकट्स चाहिए, 3 टिकट्स चाहिए फॉर दिस शो. एंड ये आई थिंक कोई होगी ए रेटेड फिल्म. सो आई सेड कि आई नीड 2 टिकट्स. सॉरी बेटा, मम्मी को फोन दो. हम ये टिकट बुक नहीं कर सकते. एक्सक्यूज मी, मैं एक एडल्ट हूँ. बेटा चलो फोन रख दो. That guy refused to sell me the ticket on the phone, and then of course we had to go there and physically buy the ticket. But I've had such really funny experiences. In fact, one more is, till date I've been fooling my mother. अब नहीं, बिकॉज अर्थ की अभी वॉइस क्रैक हो गई है एंड इज ऑलमोस्ट 18, ही इज 18 नाउ. बट टिल अबाउट 5-6 years ago I would have full conversations with my own mother in either अर्थ or परी's voice. Ah. हाँ बेटा तू स्विमिंगला गेलीस, अरे वाह, ओ मम्मा मी स्विमिंगला जाऊन आले. ऑल दॅट आय विल टॉक टू हर फॉर 5 minutes, शी थिंकिंग शी इज टॉकिंग टू अर्थ परी, एंड देन आय से मम्मा मी बोलते. अगं तू कसं, तू मला अजून ओळखता येत नाही, अजून ओळखता येत नाही. सो आय हॅव डन सच फनी थिंग्स ऑल्सो. Now that already we are discussing this, जो एस्पायरिंग पीपल है जिनको हाँ. वॉइस ओवर सीखना है या हम्म. एज अ प्रोफेशन उनको अगर परस्यू करना है, हम्म. तो उनके लिए आप क्या राय दोगे, क्या गाइडलाइंस दोगे? Very interesting सवाल. This is why, because I can't speak from my experience. So let's go back 30 years ago. 30 years ago, when this is okay, let's say precisely 1993. Okay, I don't know how many years that is. So 1993 is when this dubbing industry sort of became very present in India. तब तक ये था कि हम, मम्मी बोलती थी किसी को कि हाँ ये डबिंग करती है, वो क्या होता है पता ही नहीं था लोगों को कि डबिंग करके कोई चीज होती है. सो देयर वर अ हैंडफुल ऑफ आर्टिस्ट, हैंडफुल प्रोड्यूसर्स हु वर डूइंग दिस, एंड नोबडी न्यू अबाउट इट. देयर वाज नथिंग.
वी लर्नड एवरीथिंग ऑन द जॉब। मेरा फर्स्ट शो था एलिस इन वंडरलैंड, जो अगेन आई थिंक डीडी पे आता था, जिसमें वो गाना था फेमस, टप टप टोपी टोपी टोप में जो डूबे। सो इट वाज रिटन बाय गुलजार साहब एंड देन विशाल भारद्वाज हैज डन द म्यूजिक। इट वाज अ वेरी पॉपुलर शो। आई यूज्ड टू डब फॉर एलिस, और उसमें एलिस बहुत हंसती थी। आई वॉज ऑल ऑफ 11 और 12। आई डिडंट नो हाउ टू लाफ, फेक लाफ। बहुत मुश्किल है, एक बच्चे को आप बोलो हंसो, फेक हंसो। आजकल के बच्चे पता नहीं बहुत ही पैदाइशी स्मार्ट होते हैं, बट वी वर डम। आई वुड से वी वर लाइक रियली इनोसेंट, एंड आई वुड बी लाइक गो ha 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 ha. I used to do that, and then the sound engineer, the dubbing director, नहीं बेटा हंसो, हंसो। हाँ मैं हंस रही हूँ, हा हा हा। then they'll come and tickle me, and then गलती से कोई एक हंसी आएगी, they'll capture that, and I used to pray every day before going to the studio, please Alice don't laugh in the episode. I used to get nervous about laughing because it was just something that we didn't know how to do. अब क्या हो रहा है, एक्सपोजर इतना है, इतने सारे एवेन्यूज हैं टू लर्न। ड्रामा क्लासेस हैं, थिएटर क्लासेस हैं, वॉइसिंग और डबिंग। आई मीन मैं खुद वर्कशॉप्स लेती हूँ जहाँ पे बच्चों को सिखाती हूँ कि ये किस तरह से किया जाता है, हम अपने वॉइस को किस तरह से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो अब ऐसा है कि हमें जो एक चांस मिला था ऑफ लर्निंग ऑन द जॉब, सैडली वो अब लोगों के पास नहीं है। देर इज नो टाइम टू लर्न ऑन द जॉब, यू हैव टू कम ट्रेन्ड इन टू द जॉब। सो देर आर इनफ ट्रेनिंग ग्राउंड्स, आप सीखिए। आप, बहुत सारे वॉइस एक्टर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे मास्टर क्लासेस हैं, क्या नहीं है आज के ज़माने में, हर चीज़ है। बट उससे एक डिसएडवांटेज ये भी है दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग इनटू द बिजनेस लाइक एनी अदर फील्ड, एंड द गुड न्यूज़ इज दैट देयर इज नो what is that word that I'm looking for, replacement. There is no replacement for excellence. तो अगर आपने डिसाइड किया है कि आप इस फील्ड में आ रहे हो, गो फॉर इट विथ ऑल गट्स। मतलब ऐसा कोई एस्पेक्ट आप मत छोड़ो जिसमें आप माहिर ना हो, और हर एक अपॉर्चुनिटी को ले लो। ये मत सोचो कि ये कम है वो ज्यादा है। कई सारे आर्टिस्टों ने क्राउड डबिंग से शुरू किया है और आज बहुत ही फैंटास्टिक वॉइस एक्टर्स बन गए हैं। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं होती है, कोई भी एवेन्यू छोटा नहीं होता है, सब कुछ एक्सप्लोर करो। एंड अगेन लाइक आई सेड, कीप एट इट, डोंट गिव अप। एक क्वालिटी मैं नोटिस कर रही हूँ बच्चों में, दे गिव अप इजिली। हमें पता नहीं था कि गिव अप हम करते रहते थे, फेल हो रहे हैं, सीख रहे हैं, बट ये कभी ऑप्शन नहीं था कि मैं कुछ और कर लूं। उस वक्त लगता था कि नहीं यार, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मुझे चांस मिला है, इसको मुझे किसी भी तरह करते रहना है। अब क्या है, ये नहीं पसंद, चलो ये कर लेते हैं, वो नहीं पसंद, वो कर लेते हैं। कहीं एक मेरे ख्याल से जो एक डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, सोशल मीडिया कहो या अदरवाइज ऑल्सो, दे आर नॉट वेरी फोकस्ड। हमारे पास इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, तो कहीं पे एक चीज़ पकड़ ली तो बस उस पे फोकस करो। आई थिंक आजकल की जनरेशन को वो बहुत हो गया, दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड ऑल द टाइम कि एक किसी चीज़ पे फोकस अगर करना है तो वो बहुत इजीली नहीं है, अनलेस यू हैव पैशन फॉर इट, दैट फायर विद इन यू। इवन आई स्ट्रगल विद दिस विद द किड्स, लाइक समृद्धि सो फोकस्ड कि उसे एथलीट है, उसे वो करना है, बट अगर आपको जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होती है दैट यू लाइक यू नो यू वांट टू डू दिस या यू हैव टू डू दिस, तब तक देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन कि to come to that point is become a task nowadays. Absolutely. And options hai, like you said, you rightly said, we didn't have so many other options or distractions. तो हम लगे हुए थे एक ही चीज वो करने में, उसको ही मास्टर। एंड अगेन गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि जब तक आप वक्त नहीं गुजारोगे इतना, मतलब 10-20 साल तो कुछ नहीं है एक कला को सीखने मास्टरी में में या करने कुछ भी में, करने। हाँ। मास्टरी तो फिर भी बहुत दूर की बात है, आई वुड से। it's an, it's कहते ना an ocean. My father keeps saying, तू अजून काय शिकतेस? So it's so difficult to make him understand that अभी तो ऐसे लग रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं आता, अभी तो बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए। So and funny experiences, because जब शुरू भी किया था, I think both my parents have been so,
I would say like pillars of support, and my sister also. In fact, घर का सिनारियो ये होता था, my mother would come with me everywhere. जैसे स्कूल के बाद पिकअप करके स्टूडियो जा रहे हैं या शूट पे जा रहे हैं, my dad would be there, of course, emotional and financial support that okay, you know, go ahead, do what you want to do. My sister would then take care of the house at times. Then when she started working, there would be a lot of jugglery. But I would say because of my family being all enthusiastic about it, I could do so many things. So again, bringing the focus on family, कि किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे अगर फैमिली आपके साथ हो, जो आपके हुनर को समझे और उसको बढ़ावा दे, तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं हो कोई सकती। नहीं फिर है। तो फोकस और फैमिली के साथ 2F के साथ आप यू कैन रियली गो अ लॉन्ग वे। आई रिमेंबर, आई हैव टू शेयर दिस फनी इंसिडेंट। फर्स्ट फिल्म मिली थी मुझे, इट वाज अ मराठी फिल्म, माय लेक। और हमने सनी सुपर साउंड में डबिंग होती थी और मैं शाम को ही कर पाती थी क्योंकि स्कूल होता था, तो रात रात भर लेट तक हम डबिंग कर रहे हैं और 3 4 पता नहीं कितना, 1 हफ्ता मैंने डबिंग किया था। एंड फाइनली द डे अराइव्ड व्हेन आई एम गोइंग टू रिसीव माय फर्स्ट पे चेक। चेक तो था नहीं तभी, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। एंड वेरी स्वीटली द डायरेक्टर हैज गिवन मी 50 रुपीज इन माय हाँ। हैंड। But that moment of receiving that 50 rupees, I cannot express the joy, because कुछ आइडिया ही नहीं था कि कितना होता है, कितना मिलना चाहिए। पैसे मिले हैं इस काम के लिए, मतलब क्या क्या हमने जाके सिर्फ बात की है, बोला है कुछ उसने, and she's got this money. I will never forget. It was all 50 rupees is what I received for that film. It's so funny. जैसे आजकल के टाइम पर आप इतने सारी फील्ड्स में हो, एक्टिंग हो गया, भरतनाट्यम हो गया, या आप वॉइस ओवर हो गया। सो आपको क्या लगता है, सोशल स्किल्स जो होते हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल हो या सोशल स्किल, उसे डेवलप करने के लिए या उसे एक सर्टेन लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सो टैलेंटेड, उनमें बहुत ज़्यादा कला है, उनमें एक वो अंदर बहुत ज़्यादा उनको एक ज्ञान है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, पर उनके सोशल स्किल उतने अच्छे नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो वो कहीं पे लैक करते हैं, या दे फील दैट दे आर नॉट एबल टू गेट द वर्क दे डिजर्व बिकॉज़ दे डोंट हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी क्या राय है इसके बारे में? You've touched upon a very, very vital subject, I would say, which is very necessary, and it is most relevant in today's times. Why? Because of mobile phones. Communication is depleting so drastically. पहले तो शॉर्ट हैंड में आई डोंट नो का IDK, पहले ही शब्द कम हो गए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स आ गए हैं। एक रूम से दूसरे रूम में लोग बात नहीं कर रहे, मैसेज कर रहे हैं। तो आप सोचो, जो हम वॉइस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वॉइस की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ही कम होते जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो है वो वॉइसिंग को और कम्युनिकेशन को सेपरेट करते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। वॉइस ट्रेनिंग कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉइस एक्टर ही बनना है या डबिंग आर्टिस्ट ही बनना है या एक्टर ही बनना है। जस्ट रेगुलर कम्युनिकेशन, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके अगर ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हो, अगर आप अच्छे से बात करोगे, एक सर्टेन वॉइस क्वालिटी के साथ आप बात करोगे, आप देखोगे आपको जो वो वेटर है वो कितने अलग से ट्रीट करेगा। एक वॉइस इमेज होती है और एक बॉडी इमेज होती है। इसको तो आप भले ही कितना भी स्टाइल कर लो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े, लेकिन जैसे ही आप मुंह खोलते हो, अगर आपकी आवाज में वो पावर नहीं है, वो कमांड ऑफ लैंग्वेज नहीं है, वो एटिकेट नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है, कहीं ना कहीं आप मार खा सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करो, फॉर टू रीजंस। एक तो फॉर दिस एज अ पर्सनालिटी, एंड सेकंड बिकॉज एज इट इज कम्युनिकेशन इज रिड्यूसिंग सो मच, एवरीथिंग इज ऑन mobiles and messages and emails. So to answer your question, it's very ironic, but as a child I was zip, मतलब मैं बात ही नहीं करती थी, मतलब आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, एब्सोल्यूट इंट्रोवर्ट। मैं ऐसे जाके ऐसे मैं बैठ जाऊंगी, फिर स्टूडियो में आके कोई पूछेंगे हेलो बेटा कैसे हो, आई लुक एट दैट पर्सन एंड आई जस्ट लुक अवे कि ये अगला सवाल ना पूछे, मैं चुप। माई मदर वेरी पोलाइटली, हाँ ठीक है।
अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू हियर माय वॉइस नो, कि ये बोलती भी है कि आई है डबिंग के लिए, राइट, क्यों आई है. राइट। सो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, देन आई जस्ट लुक, अगेन आई लुक अवे, माय मदर विल से इसका नाम प्राची है. सो इट बिकेम अ जोक फॉर माय मदर. स्टूडियो के अंदर ये डबिंग करती है, स्टूडियो के बाहर मैं इसका मैं डबिंग करती हूँ. आई So नो। it became so funny, and I realized that I need to talk, but I will just go inside, I will look at the script, I will look at what is to be done, I will do, and I'll quietly come out. काम मैं बहुत अच्छा करती थी, बाहर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स वो जीरो. ये तो चलता गया काफ़ी सालों तक, मैंने समहाउ मैनेज कर लिया फ्रेंड्स वेंड्स के साथ. अब जब शादी हुई हमारी तो हमारे काफ़ी सोशल गैदरिंग्स बढ़ने लगे, एंड यू नो राजेश, यू नो हिम, he is a very social person and he can really talk. If there is a room full of people, he'll be the only one talking maximum, but he has his way, and it's been such a joy learning this through him. And I clearly remember this one incident. We were to go for this one party, and I told him, I really don't feel like coming because I don't know what to talk. I don't like talking to people. It's like, not a problem. I said, of course it's a problem because people come, you introduce me, and then I don't know what to say. Just ask questions. And that changed so many things in my head, because the moment you're standing with somebody who you don't know, it's okay, you don't have to start sharing your life history, geography. You just start asking questions like, what do you do? Okay, what is it about? Oh really? Maybe it's something you know, you add to it. If you don't know, you ask more questions. But just him saying, if you don't know what to speak, just ask questions, was a game changer for me. And I think starting from there, things evolved. And thankfully then I think, see, so it's so different. I was a voice actor from the beginning, but I was not a good communicator. So it is a good combination that now that you are a good voice actor, and then if you become a good communicator, then you are just propelling your personality that much more in life, and that helps you. So these were really wise things, that you come across, and then of course how you put them in practice. ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग तो ले ली, कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स कर लिए, लेकिन अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली अगर प्रैक्टिस में या अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपको शिफ्ट नहीं दिखेगा. और एक छोटा सा अपना एक कहते हैं ना कंफर्टेबल सर्कल एक होना चाहिए, जिसमें openly I give you so much feedback, you give me so much feedback, and it's nice to have that space, safe space, where you can tell each other things. Okay, I think this is something you need to work on, and maybe that is something you can fix. You need to have that safe space. जैसे हर एक की वॉइस अलग होती है, लाइक वी आर नोन फ्रॉम आवर वॉइसेस कि हाँ हेलो पता है ये इसका आवाज है. तो बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट एक्सपर्टीज है आपकी उसमें. आर देयर एनी वेज आप अपनी क्वालिटी ऑफ वॉइस को चेंज कर सकते हो? जैसे किसी की एक होती है, जैसे ज्याला मराठीत म्हणतात चिरका आवाज आहे, किंवा असं सम व्हॉइसेस आर व्हेरी सूदिंग, सम आर व्हेरी लाईक हस्की, सम आर लाईक different voices. So is there any way one can work on the voice that's God given? The God given would be a very tall order, and also the perception of what is God given. Now, see, a Lata Mangeshkar ji's voice and a Shreya Ghoshal's voice, so unique. So, exactly like every person is unique, there is no face that's like another. Have we ever marveled at this? We have a population of 7 billion in the world, and not one person, even identical twins, are not exactly the same, and each person has a unique voice. Now what people start doing is they start making these assumptions, or they start making this narrative, माझा ना आवाजच चांगला नाहीये. When I open my mouth now, nobody likes it. No, I think to start with, you have to break that about yourself for your own confidence. Each voice is unique. Now you have to bring out the best what you have. You can't go and change your voice, but what you can change is how you speak or how you use. I read something so beautiful, that we should not use our voice as a tool, it has to be used as an instrument.
And then there are these number of keys which are there in the instrument. We are only using 2 keys. If somebody talks like this, now imagine if I talk to you the entire interview like this, by now I think they would have either It's very mundane it is and yeah. very, yeah, and they would have skipped the video, or they would have said, yeah, this person is so boring, there is absolutely no range. But I'm purposely continuing talking like this so that people can understand the difference and what it is. And we could have conducted the entire interview, I would have spoken like this and it would have been okay. But Exactly, that shift. that shift. So what I'm doing is, there is a range. I'm hitting a different pitch. There are pauses, there is facial expression, there is body language. There is a certain engagement that you want to do in a way that you connect with your audience. If I'm just going to be sitting here with my hands folded like this and talk in one tone, it's boring. So there are certain techniques that you can include as a part of your communication development, which can be life altering. I mean, there are results, there are people who benefited tremendously. There are stories that you hear where, oh my, I was not getting promoted because every time in my presentations I would lackluster. But by doing this training, I've been able to jump that line, or things like that. And communication is the key. That is the way to go. Look at you. Like when I look at your videos which you were posting so many years ago, and then when I watch you on BU with Shraddha hosting this, it's been a leap change in your. You tell me about your experience. Enough about me. You tell me. How has your journey with your voice and your presence on camera been all these over the years? सो जैसे कि आपकी एक्सपर्टीज़ है तो मैं आपको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। किस तरह से आपकी बात होती है। आप हमारी एक बार डिस्कशन हुई थी इस बारे में कि कि कैसे चेंज करें। मैं साड़ियों के बारे में बात कर रही हूँ तो आई वाज़ आई थिंक एक ही पिच में मैं बात कर रही थी एंड Hmm. देन आपने कुछ And it was also सजेशन high pitched. हाई पिच It was a little high pitched. So सो you. आपने सजेस्ट किया कि कि इसको ऐसे चेंज करो। सो यस मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है, बट जो कुछ मैं आपसे समझ पाई हूँ, आई थिंक मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। कभी-कभार भूल जाती हूँ, बट यस उसको अप्लाई काफ़ी हद तक कर पा रही हूँ और आई कैन सी द डिफरेंस। उसका एक इम्पैक्ट समझ आ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है और मुझे लगता है कि इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी सोसाइटी में मतलब एक जनरल सोशली नहीं दी गई है कि आवाज़ या कम्युनिकेशन करते वक्त आपका पिच कैसा होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। एक इमेज कंसल्टेंसी चीज़ है, बट उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस के बारे में बात नहीं की जाती है। एंड आई एम ग्लैड दैट आप ये वर्कशॉप्स ले रहे हो, बट बहुत कम मात्रा में ले रहे हो। आई फील मोर पीपल शुड नो अबाउट इट एंड यू शुड कंडक्ट मोर ऑफन सो दैट पीपल लाइक मी जो वीडियोस बना रहे हैं या कोई भी फील्ड में अपनी सोशली आ रहे हैं आगे, या अगर सोशली भी नहीं आ रहे हो, जस्ट टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। आई थिंक ये सीखना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इम्पैक्टफुल होता है एक सोशल सर्कल में भी जाने के लिए, या आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए या सेल्फ इमेज के लिए भी। आई फील ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं और भी सीखना चाहूँगी आपसे कि कैसे No, इस चीज़ learning को never और भी stops. इम्प्रूव कर सके। Learning never stops. Yeah, so yes, it was really very very helpful जो अभी हमने बात की। मुझे आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा रहेगा और आई एम श्योर इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस आएंगे। आई एम श्योर दिस इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करा है अबाउट It's like वॉइस। creating your vocal image. इसको राइट। vocal image कहा जाता है कि आप कितने बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप किसी को मिलने से पहले आपकी फोन पे बात होती है। अब फोन पे तो आप वीडियो कॉल तो नहीं करते हो किसी को, पहली बार आप करोगे तो आप, हाय दिस इज प्राची एंड आईड लाइक टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विथ यू अबाउट सो एंड सो। द मिनट यू हियर अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ द वॉइस, बिकॉज पीपल आर वेरी क्विक टू जज। कुछ भी आप डोंट बी जजमेंटल, कहने की बात है, हर कोई जजमेंट पास करता ही है कि इसकी आवाज़ ऐसी क्यों है, ये ऐसा होगा, इसकी आवाज़ वैसी क्यों है, वो वैसा होगा। क्या है वो कनेक्शंस अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और अपनी जो अपब्रिंगिंग है उस पर डिपेंडेंट है। बट
वोकल इमेज जो है वो पहले ही फॉर्म हो जाती है। फिर जब आप मिलते हो, ओह! फ़ोन पे तो ये ऐसे लग रही थी लेकिन एक्चुअली ये ऐसी है। तो क्या होता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी कहाँ पर पिच करनी है, ये आपको ही डिसाइड करना है। इफ़ आई वांट टू साउंड वेरी एरोगेंट, मैं आपसे पूरा इंटरव्यू में आपसे ऐसे बात कर सकती थी कि हाँ श्रद्धा, तो मैंने ये किया है। सो इमीडिएटली वो एक वार्मथ चली गई है। आई एम साउंडिंग लाइक समबडी हु नोज़ इट ऑल, एंड एक एरोगेंस आ गई है। तो व्हाई आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग इज़ ऑल्सो फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि अंडरस्टैंड इट। क्या डिफरेंसेस हैं जो हम अपने वॉइस में ला। इसमें थोड़ा एक फ्रेंडली टोन है, बट दिस इज नेचुरल बिकॉज यू आर अ फ्रेंड। बट इफ आई वांट, I can bring this friendly tone even to somebody, with somebody who I don't know at all. But that has to be my choice. I have to direct my instrument to use the way I want to, when I want to. That mastery you have to bring into your voice. प्राची, आप परदेस मूवी में भी फीचर हुए हो। सो आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपको वो रोल कैसे मिला एंड आपने इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है उसमें। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अप अंटिल अ कपल ऑफ इयर्स अगो तक मैं इस सवाल से बहुत छुप जाती थी कि नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना है मुझे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी एक लाइफ का बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई शुड नॉट बी शाइंग अवे फ्रॉम इट। द रीजन आई थिंक आई वाज शाइंग अवे वाज बिकॉज आई थिंक I didn't take to the film industry like how most people would have perceived. Hari, you've got an opportunity to work in this magnum opus, because that movie had the who's who. Amrish Puri, Alok Nath, Shah Rukh Khan. I mean, it was a debut movie for Mahima Chaudhary. So and it was directed by Subhash Ghai, who was at that time a very venerated director. So it was supposed to be like, wow, this is your big break. But as I went through the process and the experience of the movie, I realized that this is not for me. So that movie was enough to tell me that, you know what, this is not what I really want to do. Life may, I may not know what I want to do, but I definitely knew what I didn't want to do. So that राइट। clarity I had thankfully from a very young age. So I was very clear about that. But to answer your question, that was a fun experience. We, again, you will be shocked to know I was in my 10th standard at that time. So this is 10th, and this is my father and my mother saying, no, but this is interesting, so you should do this. Any other parent at that, मैंने तो सुना था उस वक्त टीवी उल्टा कर देते थे कि बच्चे टीवी ना देखें। मेरे पेरेंट्स यहाँ मुझे शूट पे लेके जा रहे हैं। स्कूल वाज आल्सो अकोमोडेटिंग। उन्होंने मुझे पीटी में ए ग्रेड दे दिया, मैंने एग्जाम भी नहीं दिया था, बिकॉज पीटी एग्जाम कौन देता है ऐसे भी, सो इट्स ओके। But they were nice because they realized that okay, she's going to miss something which is going to be very important for her in future. So it was very nice of them to accommodate that. Then we were shooting for long schedules in Mysore, in Fatehpur, and so many places. And I still remember my interaction with Shah Rukh Khan. He was so humble. That's the one word I would use for him. Not only was he so brilliantly talented, he was also a very nice person. And he would include us in the discussion of, अभी ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर मैं आपको ऐसे करूंगा, ऐसे, हाँ हाँ, okay, okay. And we were all like starstruck because, ultimately you're sharing screen space with Shah Rukh Khan. अभी भी मुझे बहुत सारे screenshots आते हैं परदेस के, because somehow that movie is quite timeless. बहुत लोग हैं जिनको वो मूवी बहुत अच्छी लगती है और वो देखते रहते हैं। I mean, it's cute. इट्स अ क्यूट It's a मूवी। cute and it's a nice memory to have, that I can proudly say I've shared screen with Shah Rukh Khan, and he is a legend. I have great regard for that man as an actor, as a person, as a businessman, the way he's conducted his entire life. There's so much to learn, and he's so well spoken. I love his oratory skills. So, yes, it was a very unique and interesting experience in my life. तो प्राची, मुझे ये बताइए कि जैसे अपनी इंडियन फोक डांसेस या ट्रेडिशनल आर्ट को और एनहांस करने के लिए, उसको थोड़ी और ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिलने के लिए दैट इट डिजर्व्स, व्हाट्स द वे, या तुम्हारी कोई राय है या तुम्हारी कोई सजेशन है कि हमें, अगर हम ये करेंगे तो हम अपनी आर्ट को, आर्ट फॉर्म्स को और ज़्यादा रिकग्नाइजेशन दिला सकते हैं? आई थिंक बहुत छोटे छोटे इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स हैं जो कि ऑब्जर्वेशंस मेरे रहे हैं बीइंग इन दिस फील्ड फॉर सो मेनी इयर्स। पहले तो हमें अपने ऑडियंसेस को
तैयार करना है इसको रिसीव करने के लिए। सो देयर इज़ अ होल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेटिंग आवर ऑडियंसेस कि क्या है जो जिस रस की मैं बात कर रही थी, वो आपको रस कैसे मिलेगा? फिर क्या हम ऐसे टॉपिक्स ला सकते हैं जो रेलेवेंट हों? क्या हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं? बिकॉज़ टेक्नोलॉजी इज़ द न्यू वे ऑफ लाइफ, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, तो व्हाई नॉट इन आवर क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑल्सो? सो एड्रेसिंग टू दिस एंड चिल्ड्रन, हमारे बच्चे जो हैं, बिकॉज़ आर्ट फॉर्म अभी कहने के लिए यू कैन स्टार्ट लर्निंग एट एनी एज, इवन एट द एज ऑफ 50 somebody कैन स्टार्ट लर्निंग डांस। लेकिन जो एजिलिटी और जो ग्रास्पिंग एक बच्चे में होती है, वो एट दैट एज मुश्किल है। तो बच्चों को किस तरह से हम नर्चर करें कि वो इस आर्ट फॉर्म की तरफ आए, उसके लिए मुझे लगता है हमें इनरोड्स बनाने चाहिए, एक्सेस पॉइंट्स बनाने चाहिए, जिससे बच्चों को अट्रैक्शन हो इन चीज़ों के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है, जैसे कि एक इनिशिएटिव है आर्ट बैठक, जो हम कुछ हद तक मसाकली महफिल्स में भी कर रहे हैं, एंड ऑल थैंक्स टू यू, यू बीन सच अ गुड पेट्रन ऑफ आर्ट्स, वी हैड सो मेनी आर्टिस्ट्स who've come to Masakali Mehfils, which has also been a kind of an inspiration from the Art Betak in some ways, where we bring together different art forms and club them together as a package. उससे क्या होता है, और मैं ये क्यों शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ और भी लोग इस तरह से इसको अडॉप्ट करें और इसको अपने अपने शहरों में ट्राई करें। जहाँ अगर मुझे क्लासिकल डांस पसंद है, तो मैंने क्लासिकल डांस फीचर किया। एक म्यूजिक, तो जिसको म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक के लिए आएगा, जो थिएटर पसंद करता है वो थिएटर के लिए आएगा। लेकिन जब मैं थिएटर देख रही हूँ, मैं डांस भी देख रही हूँ, जब मैं अपने म्यूजिक को एंजॉय कर रही हूँ, मैं थिएटर भी देख रही हूँ। तो इसे मैं कहती हूँ क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ ऑडियंस। सो दिस बिकम्स एन इंटरेस्टिंग वे टू ड्रॉ मोर ऑडियंसेस टुवर्ड्स क्लासिकल डांस। और हमारे आर्ट बैठक में कम से कम 500 और 600 700 से 1000 लोग आ चुके हैं, जहाँ पे कई लोग ऐसे थे जिन्होंने आज तक कभी क्लासिकल डांस नहीं देखा था। यस, इवन मैंने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स जो एक्सपीरियंस किए हैं आपके आर्ट बैठक में, जो मुझे नहीं लगता अदरवाइज मैंने अटेंड किया होता ये इवेंट या इस तरह के इवेंट। सो आपने जो वो कॉम्बिनेशन बनाया है, लाइक ब्रिंगिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट टुगेदर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, एंड आई थिंक पीपल शुड take inspiration from this, or the way you are doing it. It's I think it's a beautiful idea, you So know. one, I thought this was one solution how to build more audience for classical dance, क्योंकि वो आर्ट का सर्कल कब कंप्लीट होता है? आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उनको देखने के लिए लोग नहीं है, तो फिर क्या फायदा? सो कल्टिवेट मोर ऑडियंस। देन आई सेड सेकंड अबाउट इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के लिए मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने बात की जिसके बारे में, व्हेन वॉल्स डांस, उसमें एनिमेशन है। सो एनिमेशन बिकम्स एन अट्रैक्शन कि क्लासिकल डांस तो है, ऑफ कोर्स है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ यूनिकनेस है कि इसमें एनिमेशन है। तो ये क्या करता है, उसे देखने के लिए लोग आते हैं, उसी बहाने से क्लासिकल डांस को भी एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड, आई स्पोक अबाउट द यंगर जनरेशन टू क्रिएट एक्सेस पॉइंट्स। Why don't we have themes that are related to today, that are relevant today? So when we talk about, in my piece again, I will talk with a reference point of that because that is my work. उसमें मैंने एक छोटी सी बच्ची की कहानी इंक्लूड की है। तो उस वजह से क्या होता है, बच्चे रिलेट कर पाते हैं। उसमें मास्क हैं, देयर इज अ लायन मास्क, देयर इज अ मंकी मास्क। सो व्हेन दे सी दीज मास्क, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग दैट होल एस्पेक्ट ऑफ द होल थिंग कमिंग टुगेदर. So I think these are a couple of things which personally, and again, use of social media. You have to use social media to the best of your advantage. So there is a series that I have conceptualized called Raz Riyaz Ka, which only focuses on the aspects and the benefits of Riyaz. So it's the secrets of Riyaz, and I have featured stalwarts in the field of classical dance where they are openly sharing everything that they do to improve their form. So I think things like that together can draw more audiences towards our Yeah, art forms. bilkul. I think that's a beautiful idea, and already you're doing it. I Hmm. think, wishing you a It lot, a has to lot of, grow. We need yes. arts need patrons, Yeah. and I think what we need is more and more people such as you who are supporting the arts, who are doing so much for our weaves, saving the weaves, and I think it's a thankless job in many ways, but somebody does it out of passion, and at least what we can do is appreciate and acknowledge that work. मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चन लेके आ रही हूँ अभी. व्हाट इज
your most favorite attire, या आप अगर कहीं ये कौन सी चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा अडोर करती है व्हेन यू हैव टू ड्रेस अप, आप क्या चूज़ करोगे सबसे पहले? I don't think there are any prizes for guessing this one. दैट्स व्हाई आई एम कमिंग अप, लाइक बहुत यूनिक क्वेश्चन आई है। मतलब इतना यूनिक क्वेश्चन है कि इसका मतलब जवाब तो जो मुझे नहीं जानता वो भी दे देगा। अनडाउटेडली द साड़ी इज माय फेवरेट। इनफैक्ट जब मुझे साड़ी नहीं पहननी हो मैं सोचती हूँ हाय मुझे ये पहनना पड़ेगा आज, और यू नो देयर इज अ सेम सर्टेन हैपेंस विद मी, but साड़ी no, के you लिए। are amazing. You are carrying the sari to every platform. And the other day, we were at a very different kind of a setup where you were the only person in a sari and you were totally standing out. And I think everybody was like, whoa, who is this person in a sari? So I think it's also that attire and then how you carry it. It makes a world of a difference. If you are going to wear a sari, but you're going to be like, oh no, I'm wearing a sari, it's going to show that you're uncomfortable. But if you carry it with that attitude and that swag, like they say, then it's like, so yeah, to answer your question, undoubtedly the sari, because I think also I'm connected to the field of dance where the sari, especially the Kanjivaram sari, plays such an important role because Bharatanatyam costume. So most of the times when I come to Masakali, I'm looking at saris ki yaar iska costume kaisa acha कैसा? lagega, iska costume, and then you'll be like, wow, this sari is going to be torn to pieces to make into that costume. बट या दैट्स ऑल्सो मैं अपनी मम्मी की सारीज भी देखती हूँ कि उसमें से कौन सी है जिसको मैं कॉस्ट्यूम में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो साड़ी का डबल कनेक्शन है, वन इज टू ड्रेप लाइक दिस एंड ऑफ कोर्स टू मेक इट इनटू अ डांस कॉस्ट्यूम। एंड आई थिंक साड़ी में एक कंफर्ट जो एक आ गया है, जो नेचुरल कंफर्ट है। पता है that you're going to look elegant, you know that it's going to sit well, you know that the colors are, there is so much variety, you're never, and you never, क्या कहते हैं, you're never out of shape to wear a sari. एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एनी साइज, एनी Any शेप। shape, any size, any time, सालों साल, पीढ़ियों, generations are draping saris, and I think both of us will agree that there is not a single task that I can't do in a sari. आई थिंक इवन प्लेइंग फुटबॉल, हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया है बट कर सकते हैं ट्राई, वी शुड ट्राई, बट आई नो कॉन्फिडेंटली कि मैं किक तो कर ही लूंगी बॉल इजीली, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। सो एंड देन वी गेट रेडी सो क्विकली, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिक, लाइक 3 minutes and we are out in a sari. So it's fun. And it's such a graceful attire to, Yes. drape, I feel. आप कितनी भी महंगी डिजाइनर ड्रेस पहन लो या कोई आउटफिट पहन लो, बट जस्ट अ सिंपल सिल्क या कॉटन साड़ी आप ड्रेप कर लो, it has a different charm, it has a different grace. And yeah, I think uh, I just want to inspire more young generation, young kids to drape saris. So we always come up with these ideas, team it up with a halter neck blouses or a crop top, or the ganjis, and just give it a little twist so that the young kids don't feel, oh, this is so typical. You can wear it with boots and jackets and different style. So I can see my girls are also getting thoda sa interested in the sari, the way sometimes we drape it with little bit of twist. So yes, my uh, uh, idea is, I want to inspire more young people and girls to drape saris, and it's so wonderful to see these days even men are draping saris in a beautiful way, dhoti style and even normal style. There are so many men who are just doing it so well, coming up in a public platform with draping a sari and all that. It's such a nice thing. So for in the dance field, it's not a very unusual scenario because all male dancers, the dhoti that they wear is from a sari. And for them, the best part is they don't have to stitch anything. So they can just pick up any sari. They could take this sari or this sari and just quickly drape and they could dance in it. So it's a very common scenario in the dance world to see men draping saris beautifully because that's what they use as their costume. So we are very closely associated with sari. Prachi, that was wonderful talking to you. Other than every day, whatever gappa we do, this was really different.
and very insightful. And बहुत अच्छा लगा जान के about, in depth about your personal experiences. So thank you so much for being here on Be You with Shraddha S. I think I'm always be you only with Shraddha I because know. there is so much comfort. But like you said, we do talk about so many other things, but I don't think we've ever spoken like this. And it Exactly. was fun talking to you like this. Yes. Thank you so much for watching this episode of BU with Shraddha S. We hope you enjoyed the conversation. Please don't forget to subscribe, share, and follow our social media. Thank you so much. Namaste.